آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس گفتگو کو آپ پورا ضرور سنیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کریں کہ ان چلے کے پلوں کو کس طرح سے بہکایا جاتا ہے، کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے دیوبندی مولوی کی بڑی تعریف کرتے ہیں دل کھول کر، اور ہم سنی حنفی بریلویوں کو گمراہ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں معاذ اللہ قبر پجاری۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے شیطانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور اللہ پاک کی تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ خیر، آئیے یہ چلے کے پلے ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو کس طرح بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس گفتگو میں آپ ضرور سنیں گے اور سن کر فیصلہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ لوگ بحث و مباحثہ صرف داڑے کچلنے کرتے ہیں، بکواس کرنے کرتے ہیں اور گھر سے 2 روٹی بندوا کے لے آتے ہیں کہ اماں 2 روٹی باندھ دے، ہم بریلویوں سے بحث کرنے جا رہے ہیں، بحث و مباحثہ کریں گے۔ سمجھے؟ ماں منع کرتی بھی ہوگی تو بولتا ہوگا کہ ماں تو ٹینشن مت لے، ہاروں گا نہیں، کیونکہ میں مانوں گا ہی نہیں، مجھے ماننا تھوڑی ہے، مجھے تو زبردستی کرنی ہے۔ تو یہ 2 روٹی بندوا کے آ جاتے ہیں چلے کے پلے اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر یہ ثابت کر دیا تو ہم توبہ کر لیں گے، وہ ثابت کر دیا تو توبہ کر لیں گے۔ جب ثابت کر دو ان کے گھر سے تو ابو جہل کی طرح الٹے پاؤں بھاگتے ہیں کنکریاں پھینک کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا نا ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ ابو جہل ان کے باپ کا بھی یہی عقیدہ تھا، مگر ان شیطانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے جو نفی والی آیتیں ہیں تو وہ عطائی کی تو نفی ہی نہیں ہے نا، وہاں پر ذاتی اور کلی علم غیب کی نفی ہے، یا پھر تیسری بات جو ہے وہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور انکساری والی آیتیں ہیں۔ میرے نبی سے بڑا عاجزی انکساری کرنے والا کون ہوگا؟ خیر، آڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، معاف کیجئے گا، سمجھانا بھی بڑا ضروری تھا۔ اس نے جو سوالات کیے اس کو میں نے اسی کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، پر مانا نہیں۔ خیر، آپ سنیں یہ چلے کے پلے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آڈیو پوری سننا بھائی مسلمانوں، اور فیصلہ بھی کریں، کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی، کون صاحب؟ سجاد بول رہا ہوں، سجاد صاحب، کہاں سے؟ بھیونڈی سے۔ بھیونڈی، اچھا، آپ کا مسلک بھائی جان؟ بریلی شریف۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل نہیں فون کیا تھا؟ کس نے؟ آپ نے؟ ہلو، کل میں فون کیے تھے نا آپ کو۔ بات ہوئی ہے کیا آپ سے؟ ہاں ہوئی ہے، اچھا، موبائل بند تھا، صبح سے فون لگا رہا ہوں۔ ہاں، لائٹ نہیں تھی، سوئچ آف ہو گیا تھا موبائل کسی سے بات کرتے کرتے۔ ایک آدمی پریشان کر کے رکھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بول رہا ہے کہ میلاد کہاں سے منانا حدیث میں ہے، میرے کو ثابت کر دے۔ تو اس کو بولو کہ ہم تجھ سے کہاں کہہ رہے ہیں کہ تو میلاد منا، ہم منا رہے ہیں تو جو تجھے تکلیف کیوں ہے اس کو بولو نا۔ بہت کچھ بولا ہوں، صبح مجھ وہ بولتا ہے کوئی اگر بتا دے گا، ثابت کر دے گا تو میں توبہ کر لوں گا۔ صحیح میں ہاں، اس کو قرآن کی قسم کھلا کے میری بات کرا دو، اگر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو پھر اس پر۔ یہ بھی بول رہا ہے تو لوگ پوجا کرتا ہے۔ ایسے حرامیوں سے بات کرتے ہوئے نا، حرام کے پلوں سے مجھے بڑا ہی جنون چڑھتا ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کمین۔ 6 مہینہ سے پریشان کر رکھے ہے، نئی جانکاری اگر کچھ ہوتا تو میرے کو ہی بنا دیا ہوتا۔ خیر، یہ کم علم لوگوں کے پاس ہی جا کے بکواس کرتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا ہے کچھ حرام کا پلہ؟ وہی جاتا ہے جماعت میں، کچھ پڑھا لکھا ہے؟ خالی جماعت میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا نا سالے، ان کے بڑے بڑے مفتیوں کا پسینہ نکال دیتا ہوں، تو یہ کیا ہے سالا چلے کا پلہ؟
वो ये 6 महीने से पीछा पड़ा, अगर दूसरे रहता तो हो गया होता। अच्छा एक बात है, उसको बोलना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में बहुत ईंटे पत्थर खाए हैं और ये बर्दाश्त सब की तो है। बोल, सुनो तो ये सब हजरत, वही बोलता होगा ना, वही बोलता होगा। अब तुम याद दिलाना, ठीक है? और मारना चड़ाक से एक घूसा, मतलब एक थप्पड़, जो उसका जो कल्ला है ना, गाल जो है ना लाल हो जाए, और फिर एक इधर समानता घुमा के। समझे? ये भी बोलता है, हाँ ये भी बोलता है कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी को गलत अरे नहीं हजरत, कहना। पहले एक पे अमल करो, पहले एक पे अमल करो। कहो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंट पत्थर खा के खून से लहू लहान होके भी कुछ नहीं कहा। तू भी जरा मेरे नबी की तरह बर्दाश्त करके देख। ये सब भी बोलता है। अरे भाई अमल करके देखो ना। हाँ अमल करो इस पे, समझे? हाँ ठीक। हाँ, मेरे को इस पे बोला था अमल करो बात अब। कराने के लिए। हैं? वो बोला था मेरे से बात कराने के लिए आपसे। मुझसे बात करने बोल रहा है? हाँ, अगर साबित कर देगा तो मैं तौबा कर लूंगा। वो तौबा नहीं करेगा, समझे? ये चिल्ले का पिल्ला थोड़ा सारा पढ़ा है, थोड़ा सारा इसने सुना है अभी, मगर मैं इसके भी अपने जानता घर की हूँ। हकीकत उसको मालूम नहीं है। ये भी बोला हूँ कि तुम्हारी किताब में इतना खराब खराब लिखा है। उसको बोलो तो अपने किसी मुफ्ती से बात करा। ये बोलता है तुम्हारा कितना बड़ा भी आलिम है, मेरे पास लेके आ। अच्छा, लाइन पे लो इसे, ठीक। जल्दी लो, अभी के अभी। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोल। हाँ हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कौन साहब? अरशद। अरशद, कहाँ से? जी, बनारस। बनारस से। आपका मसलक? हमारा मसलक हनफी है। जी, पहचान? पहचान? जी। शेख। जी, शेख है। मैंने जमात पूछा, तुम्हारी बिरादरी नहीं मालूम की है। हाँ हाँ, शेख मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी बिरादरी नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जमात की पहचान पूछ रहा हूँ। वही काम, जमात का काम पूछ रहे हो? जी, अरे जमात का काम पूछ रहे हो? पहचान पूछ रहा हूँ, पहचान, काम नहीं पूछ रहा हूँ। काम का मुझे मालूम है कि क्या काम है तुम्हारी जमात का। खुल के पूछो ना। खुल के ही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जमात की पहचान क्या है? देवबंदी हो कि अहले हदीस हो? ना अहले हदीस है ना देवबंदी है। लवारिस हो? नहीं लवारिस आप शिया हो? मोहम्मदी है। शिया हो? शिया? शिया तुम हो ना? कादियानी हो? यजीद। यजीद। प्यार से बात करोगे कि नहीं? जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। मैंने सुना है बहुत ज्यादा बहकाते हो तुम लोगों को। तुम लोग से ज्यादा बहकाने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ है क्या? अच्छा चलो, अगर नहीं पैदा हुआ है तो तुमने कहा है कि अगर कहीं से मिलाद साबित कर दिया तो मैं जो है तौबा कर लूंगा। क्या वाकई आपने ये बात बोली है? हाँ। अच्छा, तो देवबंदी जमात में जाते हो ना आप? ना देवबंदी में जाता ना, मैं अहले हदीस में जाता हूँ। मैंने सुना है कि आप देवबंदी जमात में जाते हैं। में सहाबा जमात में, तो सहाबा की जमात है उसमें जाता हूँ। अच्छा, अहले हदीस हो ना तुम? नहीं अहले हदीस नहीं हूँ। अच्छा, मोहम्मदी हूँ। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नालायक को मुसलमान मानते हो कि काफिर? किसको? डॉक्टर जाकिर नालायक को। वो उससे मेरे को मतलब नहीं है। अच्छा, तौसीफ शैतान को क्या मानते हो? किसको? तौसीफ शैतान। तौफीक शैतान? तौसीफ शैतान सऊदी अरबिया में जो रियाल पे पल रहा है। अच्छा, वो शैतान है? हाँ। तुम इंसान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोमिन हैं।
इंसान तो है ही है, मोमिन है हम, गुलामान रसूल हैं। हमको तो नहीं लग रहा तुम गुलाम गुस्ताख लग रहे हो। नहीं नहीं, हाँ, जो अरब वाले को शैतान बोले उससे बड़ा गुस्ताख कौन है? तुम्हारा पापा अबू जहल भी था अरब में ही, वो कहीं दूसरी जगह में नहीं था, इंडिया में नहीं था वो, ठीक है। क्या तुम्हारी अम्मी रुतबा और अबू जहल शहबा, कहाँ थी? रुतबा और शहबा के मानने वाले हो क्या? किसको? और तो जुबान को तुझे लगाम देके बात करना, बाप पे और पापा पे जाओगे ना तो मोबाइलिया में घुस के मुंगा तो तुमने सीधा सीधा जवाब ही कहाँ दिया है मुझे? बदतमीजी मेरे से मत करने की कोशिश करना। इज्जत से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ। इज्जत से बात कर रहा हूँ। तुम कलेक्टर हो ना? हाँ, कलेक्टर है तू? कलेक्टर नहीं है तभी कलेक्टर बन जाएंगे इसी यहाँ से भी। ये आजा, कहाँ आना है तुझे? हाँ, हाँ, मुझे आना है। तू जमात में जाता है ना, बोलता क्यों नहीं है? शर्मा क्यों है? इतनी गंदी हाँ जमात है बे, तेरी। जाता हूँ बे। तो जाता तो अभी तो मना कर रहा था ना, मुसलमानों फैसला करना। ये अभी क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? हाँ बोलना। मैं कह रहा हूँ अगर आप हक पर हैं, आपकी जमात हक पर है तो आप साबित कर दीजिए। मैं साबित करूँ? हाँ, नबी सब हक पर है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी ने तो सारी कायनात को ईमान बख्शा है। हाँ, साहबा हक पे है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उन्हीं का काम हम कर रहे हैं। मगर तुम्हारा अकीदा सहाबा वाला अकीदा नहीं है। बता दो कैसे नहीं है? मैं बताऊंगा ना, साबित करूंगा इंशाल्लाह। तो पहले आप ये बता दीजिए, आपकी जमात खुल के बता दीजिए। जमात में जाते हो ना आप? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जिंदा रहेगा तब तक जाएंगे। अच्छा ठीक है। देवबंदी और अहले हदीसों में दोनों में मुनाजरा चलता है, दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। आप अहले हदीस को काफिर मानते हैं या मुसलमान? जल्दी बोलो। हम किसी को काफिर, हम काफिर को भी काफिर नहीं मानते। कुरान पाक का तुमने इनकार किया, हदीस पाक का इनकार किया, और जो कुरान और हदीस का इनकार करता है वो खुद काफिर है। फैसला करो, क्या करना है तुम्हें? मैं काफिर को काफिर मानोगे कि नहीं मानोगे? एक मिनट हेलो, ऐसे नहीं सुनता हूँ, पहले जवाब दो बात का। मेरी सुनो ना। नहीं, कुछ नहीं सुनना, पहले जवाब दो। तुमने अपनी बात सुना दी, बाद में आप सुनाना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कहा मैं काफिर को भी काफिर नहीं मानता। नहीं मानता। अच्छा, तो कुरान और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान है या काफिर? कुरान हदीस से जब मैं इनकार करूंगा तब ना काफिर होऊंगा। पहले जवाब दे दो ना, कुरान हदीस का इनकार करने वाला काफिर है या मुसलमान? जल्दी बोलो। मेरे नबी की हदीस है कि काफिर को भी काफिर और काफिर मत कहो। चलो हदीस पेश करो। नबी की जुबाने अतार से निकलती बात, हदीस पेश करो। हम इनकार नहीं कर सकते। हदीस पेश कर दो। हदीस पेश कर दो। वो कौन सी हदीस? यहाँ मैं कुरान, यहाँ हदीस लेकर नहीं बैठा हूँ ना प्रार्थना की पेश नंबर सफा बताऊँ। ये दलाली करना बंद करो, दलील दो, ठीक है? दलील दो, दलाली मत करो। अच्छा एक मिनट, मैं दलाली कर रहा हूँ ना। हाँ, तुम बताओ ये दावत वाला काम कहाँ से गलत है? अरे यार, तुम्हारी दावत से मेरा कोई एतराज थोड़ी है। तो मेरे को तुम जो दावत देते हो ये कुफ्र की दावत देते हो। दावत तो तुम जरूर देते हो मगर कुफ्र की दावत देते हो। वो कैसे? मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले आप मुझे ये बताओ कि कुरान और हदीस का इनकार करने वाला मुसलमान है या काफिर? भाई ये मेरे भाई भैया दलील मांग रहे तो मेरे भी दलील बताओ ना, कहाँ से? बिल्कुल दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? नूर हसन से बात कर रहे हो। दुनिया देवबंदियत के बड़े बड़े मुफ्तियों के जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके पैरों में लर्जा तारी हो जाता है नूर हसन का नाम सुन के। तुम्हारी जमात में कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बात कर ले किसी भी अकीदे पर। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हूँ तुमसे बात करने के लायक। मुफ्ती हो तुम? मुफ्ती नहीं तभी तुमसे मैं बात कर लूंगा। अभी मौलवी हो? इल्म दिया है, हासिल कर दिया है। अच्छा, इल्म दिया है तो फिर वो हदीस पेश करो ना जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए भाई ऐसे बात नहीं करता हूँ, बराबर मत बोलो। हेलो, मेरी बात सुन लो और अपनी बात कह दो प्यार से। हाँ मैं भैया, आपको भैया प्यार से बोल रहा हूँ। मैं आपको गुस्सा कर रहा हूँ क्या? आप बीच में बोलने वाले से मुझे बहुत सख्त नफरत है। बीच में बोलने वाले से, बड़बड़ करने वाले से बहुत सख्त नफरत है। उससे ज्यादा मेरे को नफरत है। मेरे को दिल चाहता है कि खून पी जाऊं जो पीछे बोलता है। आजा फिर। हाँ तो मुझे पूछिए, बात पूछिए, इस बात थोड़ी झगड़ा। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो हदीस पेश की है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए जी, तो वो हदीस पेश कर दीजिए। मस्जिद के अंदर नहीं है मेरे भाई। मस्जिद के अंदर किताब लेके सफा नंबर तुमको आयत नंबर तो सुनाते थे ना। अभी भी जोड़ रहे काम पे बैठे हैं। अब यहाँ से हम कैसे कुरान की आयत निकालेंगे, हदीस की आयत? कहाँ पे बैठे हैं? काम पे बैठे हैं। अच्छा, तो तुमने ये बात कही कैसे जब जिस बात का तुम्हें खुद को इल्म नहीं है वो बात कही कैसे? इल्म है, अल्लाह का शुक्र है, हमें इल्म है उसका। अच्छा रुको, अब मैं कुरान, अच्छा एक मिनट, दिमाग से जारी नहीं करते। कुरान पाक की मैं आयत पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिर को काफिर कहा। चुपिए ना, मेरी बात सुनिए ना।
आपने कुरान पाक की आयत पढ़ने की बात कर दी, आपको इतना इल्म नहीं है कि जब ये कुरान पाक की आयत उसके पास सुनाया जाता है, ये जो आलिम होता है, मैं तो गैर आलिम हूँ, तो मेरे को आप कुरान पाक की आयत पढ़ाओगे? तो जनाब आप तो अभी कह रहे थे कि मैं बात करूंगा, मुझे है इतना इल्म। कुरान पाक की आयत पढ़ने का मैं आलिम हूँ, आपसे बात मुसलमानों फैसला आपको करना है। ये जमाती है 4 दिन में 4 दिन जमात में जाके मुसलमानों को बहकाने लगते हैं। मैं भाईजान क्या बोल रहा था कि वो तौबा करने वालों में से नहीं है, तो इनको परेशान क्यों करता है जिन्होंने तुझे कॉल लगाया है जी? तो इनको क्यों परेशान करता है जिन्होंने तुझे कॉल लगाया है? वो तो खुद परेशान है, 24 घंटा वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, तौबा कर ले, तो मैं उससे क्यों बोलूंगा? वो तो खुद मेरे गाने में उंगली किए रहता है, दिन भर हमेशा फालतू बकवास करते रहता है। उसको क्या नाम ले दिया तुमने? क्या नाम ले दिया? ऐसा तो वो नहीं करेंगे, तुम्हारे उंगली करेंगे वो। पूछ लो मेरे भाई, मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ भाई, कभी तुमने इनकी उंगली करी है क्या? हाँ भाई, हेलो, इनके उंगली करी है क्या? इन्होंने कहा मेरी उंगली करता है। अरे गड्ढे पर लोग बांटते रहता है। किसको बताया रे? तेरे कभी मैं बोला क्या कि तू आजा मेरे तबलीग में आजा? तुमने कहा कि मिलाद, कभी ऐसे लोग मेरे रास्ते में जाए पूरा नफाक करके रख देंगे। क्या करके रख देंगे? नफाक कर देंगे, इतना पाक साफ काम को नफाक कर देंगे ऐसे लोग। कौन जो बोल रहा है कि मैं इसको बहका रहा हूँ? अरे नापाक जमात में तो तुम हो यार, जो निजासत को चाटना पसंद करते हो, जो निजासत के पोतड़े सूंघते हो, जो फासिक और फाजिर जानवर को खाना सवाब करार देते हो। यार नापाक वो लोग हैं कि वो लोग हैं जो पाक चीजें खाते हैं, पाक ग़िज़ाएं खाते हैं। सही बोल रहा है मुर्गा खाने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्गा अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जो है रखा है, तो हम मुर्गा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अब तुम्हारी किस्मत में कौवा आया तो तुम कौवा खाओ यार। सही, राइट। अब पुराने पाक का हवाला दे दूं, जिसमें तुमने एक झूठ बांधा मेरे आका की तरफ, मेरे नबी की तरफ, और हुजूर का खुद फरमान है कि जिसने मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब की, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर जो है अजाब है, फरिश्तों की लानत, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की लानत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोलिए। तो तुम और तुम्हारी पूरी जमात को मैं जो है यहाँ चैलेंज करके बोलता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी और तुम्हारी पूरी जमात की, कि तुम मुझे कोई ऐसी हदीस पेश करो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि किसी काफिर को भी काफिर नहीं मानो, काफिर नहीं कहो। नहीं कहना चाहिए, मानो मत, कहना नहीं चाहिए। फिर वही बात, कौन कब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक मिनट, अच्छा एक मिनट, जुबान से निकाल दे। एक मिनट, कोई नहीं जानता कि कोई कौन। सुनिए, ये तुम्हारा दज्ल है, ये तुम्हारा दज्ल है। मेरे आका ने सिर्फ इसलिए कहा कि किसी के जो वो होते हैं बुजुर्ग, जैसे हिंदुओं के बाबा पीर हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको बुरा ना कहो, बस ये कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि किसी काफिर को काफिर ना कहो। काफिर का लफ्ज ही बुरा है, काफिर का लफ्ज है। अच्छा एक मिनट, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। जो मोमिन है उसको मुशरिक कहना कैसा है? जो मोमिन है उसको मुशरिक कहना कैसा है? गलत है या खुद मुशरिक वो हो जाएगा जो कहेगा? अरे गलत है तो गलत का मतलब वही ना हुआ कि पूरी बात करो सबूत और दलील के साथ। ऐसे बात करने में मजा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। हाँ, हम देखिए आपको पहले ही बताया ना, मैं आलिम नहीं हूँ कि आपको असल दलील। तुमने तो कहा था कि मैं बात करूंगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा। देखिए हम किसी हमको गलत, सुनिए एक मिनट, अगर आप हमको गलत ठहरा देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपसे इत्तिबाई करने लगूंगा। मैं माशाअल्लाह, मेरी इत्तिबा नहीं करो, मेरे नबी की इत्तिबा करो। आपकी बात का इत्तिबा करूंगा, नबी की इत्तिबा करूंगा। अब सुनिए भाईजान, अच्छा सुनिए, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं या नहीं? बेशक है। माशाअल्लाह, हुजूर के शान में कोई बेअदबी करे आपके सामने, उसके साथ आप क्या करेंगे? जो जितना ताकत रहेगी उतने ताकत से मारेंगे, या तो बुरा समझ के छोड़ देंगे, या तो उसके बुरी नजर उस पर डाल के हटा देंगे। चलिए, आपके पापा ने आपके सामने मेरे नबी की शान में तौहीन कर दी, आप अपने पापा के साथ में क्या करेंगे? मेरे बाप भी गलत है? गलत नहीं, करेंगे क्या? मेरे नबी की शान में अगर वो तौहीन करे तो अपने बाप के साथ क्या मामला पेश करेंगे आप? क्या कुछ नहीं करेंगे? मारेंगे कि छोड़ेंगे? मारेंगे कि छोड़ेंगे? नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? नहीं जा, इसलिए कि वो तुम्हारे बाप हैं। मेरे बाप रहे तो कोई भी रहे, नहीं मार सकते। अभी तो कह रहे थे मारेंगे, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं पूरी ताकत से मारूंगा। हाँ तो हाँ, गैर रहेगा, मारेंगे। अच्छा, गैर रहेगा, बाप रहेगा तो नहीं मारेंगे।
अच्छा उसको अल्लाह ने जरिया बनाया। अल्लाह अब ने कहा सुनिए, मैं सबूत तुम्हारे सबूत अकेले सबूत शरीफ ले इतना लीजिए, है, इसको सबूत समझाओ पहले। सबूत ले लीजिए। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की है कि नहीं की हैं? की है कि नहीं की है? हूँ मत करो। क्या थी? नहीं समझ में आया, इतना मोटा करके नहीं जुमला समझ बोला। जंग जंग जंग, हाँ की है कि नहीं की है? किए। अच्छा, जंग में हुजूर सिर्फ अकेले जाते थे कि सहाबा इकराम भी जाते थे? सहाबा जाते थे साथ में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने अपने बाप दादा नवासे पोते भतीजी भतीजे इन सबको भतीजों को कत्ल किया है कि नहीं किया है? पोतों को कत्ल किया है कि नहीं किया है? नवासों को कत्ल किया है कि नहीं किया है? बाप को कत्ल किया है कि नहीं किया है? ताऊ और भैये, मतलब जो भी रिश्ता आया। मालूम है, भाई को कत्ल किया, बाप को कत्ल किया, चाचा कत्ल किया, सबको कत्ल किया है। तुम थप्पड़ नहीं मार सकते अपने बाप के? हैं? तुम थप्पड़ नहीं मार सकते अपने बाप के? नहीं, जब अगर मेरा बाप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ने वाला होता तो मैं उसको मार सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे बाप ने, मैंने कहा तुम्हारे बाप ने अगर मेरे नबी की शान में तौहीन कर दी। सुनेंगे कि नहीं? अगर मेरा बाप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ने वाला होता तो हक है मारने का। अच्छा एक मिनट, मेरे नबी को इनकार कर रहा है। अच्छा एक मिनट देखिए भाईजान, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को कबूल किया तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसे समझाने का। हाँ सुनिए, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से कोई इंसान मुसलमान नहीं हो जाता। खाली नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। खाली हज करने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हुजूर के साथ जंग लड़ने से भी मुसलमान नहीं होता। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने से भी मुसलमान नहीं होता। नहीं होता, हाँ मालूम है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हर बात मैं आपको दलील और सबूत के साथ बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से जुमे के खुतबे में किन लोगों को निकाला था? इतना नमाज पढ़ने के लिए आए थे? नमाज पढ़ने के लिए आए थे कि पूजा करने के लिए आए थे? पूजा करने के लिए आए थे। मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे कि पूजा करने के लिए आए थे? बुत परस्ती करने आए थे कि अल्लाह की इबादत करने आए थे? कौन सी नमाज की बताओगे पहले? तभी तो मैं कह रहा हूँ अपने मुफ्ती को लाइन पे लाओ। तुम कह रहे हो मैं बात करूंगा, जब तुम्हारी हिम्मत नहीं है बात करने की। सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारे मुफ्ती इतने फालतू नहीं बैठे रहते। तुम्हारे मुफ्तियों के अंदर हिम्मत नहीं है जो मुझसे बात कर ले। मैं कहता हूँ दावा करके। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे किसी भी अकीदे पर तुम्हारे मुफ्ती ने अगर मुझे शिकस्त दे दी, समझे, तो 1 लाख रुपए का नगद इनाम। जी, हमारे मुफ्ती ये सब जिहालत के मामले में बात ही नहीं करते हो तो हमको ही मना। मैं तो इल्मी बात कर रहा हूँ, जिहालत तो तुम कर रहे हो। हाँ, जिहालत तो तुम कर रहे हो, जिहालत तो तुम दिखा रहे हो। नहीं है किसी से हम मुनाजरा करे, हमें ये अलाउड ही नहीं है, हमें तो मना है आगे से। तो तुमने फिर मिलाद के लिए हम कर रहे हैं। तुमने मिलाद शरीफ पर उंगली क्यों उठाई? जी, मिलाद शरीफ पर तुमने उंगली क्यों उठाई? हमने बस इतना कहा कि तू कुरान हदीस से साबित कर दे, इंशाल्लाह मैं भी मानना शुरू कर दूंगा। मैं भी मेरी सारी जो अच्छा कराऊंगा। तू अपनी और अपने बाप की पैदाइश कुरान और हदीस से साबित कर दे, चल मैं भी मान लूंगा कि तू जो है कुरान और हदीस में तेरे बाप का और तेरा जिक्र है। चूतिया वाली तुम बात करने लगे। अबे बेवकूफ के बच्चे, चूतिया वाली तू बात कर रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ? कमीन के बच्चे, अब गाली पे आ गया है। भेड़ी का बच्चा है, भेड़िया। तुम सारे सिखाते कम हो और पागल इंसान, बहकाते ज्यादा हो। बहकाते, मुंह में बरेली शरीफ का बांस डाल देता हूँ मैं तेरे बड़े बड़े मुफ्तियों पे, ठीक है? तेरे हाथ में मैं पूरा हाथ डाल दूंगा अपना मुंह में। तू जानता नहीं है अभी मुझे ठीक तरीके से। जानने की जरूरत ही नहीं है तेरे से। मैं तभी तो बोल रहा था कि देख, मैं तेरे जैसे चिल्ले के पिल्लों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इसीलिए मैंने तुझसे शुरू में कहा था कि तेरी जमात का कोई बंदा ये ना कहे, सुनना, तेरी जमात का कोई बड़े से बड़ा आलिम ये ना कह दे कि इसने हमें नहीं याद नहीं किया। इसलिए मैंने तेरे मुफ्तियों को याद किया। तूने कहा मैं बात करूंगा तो फिर तुझसे मैंने बात करना शुरू की, समझा? मगर तुम्हारे चिल्ले के पिल्ले हमारे कम इल्म लोगों को पकड़ते हैं, हमारे किसी आलिम के पास नहीं जाते। अबे पागल, ये पहचान है। तुम्हारे जो मुफ्ती है ना, तुम्हारे जो मुफ्ती हैं, ये स्कूल के लड़कों को बहकाते हैं, ये कारोबार वाले इंसानों को बहकाते हैं, कम इल्म लोगों को पकड़ के बहकाते हैं। बहकाने क्या है? बहकाने काम अबे तुझे भी बहका दिया। तू और तेरे बाप दादा पहले सुन्नी हनफी बरेलवी होंगे, कसम खा के बता के नहीं थे? सुनेगा तू थोड़ा सा, पहले कसम खा के बता कि तेरे बाप दादा सुन्नी हनफी बरेलवी नहीं थे, बोल। अरे सुन्नी तो तू अल्लाह के नबी की उम्मत बनी तो सुन्नी है। पहले ये बता, मैं ऐसा बोला कि सुन्नी नहीं हूँ मैं। तेरे बाप दादा उसी जमात में है जिसमें तू अब है? तेरे बाप दादा पहले से ही उसी जमात में है जिसमें तू है? अबे मेरे बाप दादा नहीं, मेरे बाप दादा के दादा के दादा सब सुन्नी है। मैं कह रहा हूँ देवबंदी जमात में है। जो अल्लाह के नबी को मानता है वो सुन्नती में चलता है मेरे भाई। कहेगा तू उल्टा बात कर रहा है, जो बात कर रहा है ये फैसला तो अवाम अहले सुन्नत को करना है, तुझे थोड़ी करना है। हाँ,
ये फैसला आवाम को करना है। हाँ तेरे जमात के लोग भी देख लेंगे कि कैसी भर्ती कराई है जमात की। मैं सुननी नहीं हूँ। अच्छा चल बता, जमात में कितनी बार चले गए हो? मैं तो 15-20 बार गया हूँ। 15-20 बार। तशहुद सुनाइए जी, तशहुद सुनाइए तशहुद। तशहुद ये क्या हाँ। होता है? तशहुद ये क्या होता है? ये भी नहीं मालूम ये क्या होता है? नहीं मालूम भाई, नहीं है, मालूम नहीं है भाई। मैं तो तो पहले बता क्या करते हो वहाँ जाके? क्या सिखाते हैं वो लोग हैं? तुम्हें? क्या सिखाते हैं? तुम बता दो ना, मेरे से तुम बताओ ना, तुम आलिम हो ना, तुम मुफ्ती हो ना। चलिए दुआ मासूरा सुनाइए। हैं? दुआ मासूरा सुनाइए। क्या है, तुम मेरे को ट्रेनिंग लेने बैठे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, जमातों में जाते हो ना तुम तो अच्छा। मतलब लोगों को दीन सिखाने जाते हो। हाँ, तो मैं भी देखो कितना दीन सिखाते हो तुम लोगों को, तुम्हें कितना ठीक है। दीन याद है। सुनाएंगे, बेशक सुनाएंगे, काहे नहीं सुनाइए सुनाएंगे? सुनाइए दुआ मासूरा सुनाएंगे, सुनाइए। मगर ऐसे थोड़ा सुनाएंगे, मोबाइल में थोड़ा सुनाएंगे तुमको। क्यों? सामने आओ, बैठ के बात करते हैं मस्जिद के अंदर, एकदम कायदे से सुनाएंगे, एकदम पूरी डायरेक्ट कुरान में मना जो कर दो ना कि याद नहीं है मुझे, करना। मुझे पता हाँ? नहीं है। बोल दो ना कि मुझे पता नहीं कि ये क्या बोलते हैं। मुझे तो इतना पता है ना, जितना तुम मुफ्ती बन के तुम्हें नहीं पता होगा ना, उतना मुझे पता है, मगर मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों देख रहे हैं, देख लीजिए। हाँ। जिसको दुआ मासूरा याद ना हो, जिसको तशहुद का ना मालूम हो। अच्छा चलिए। अच्छा हेलो भाई, सुनिए भाई, सुनिए दुआ, एक मिनट। अरे सुनिए सुनिए। मेरा सुनेंगे, एक बात सुन लीजिए खाली। यही बात, मेरे सवाल जो किए हो आप, यही सवाल शाहजाद से करके दिखाओ तो, वो दुआ मसूरा से सुनो, दुआ कुनूत सुनो तो। चलो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सुना मेरे को दूंगा, ये- तभी तो मैंने पूछा है। शाहजाद से सुनाइए मेरे को, होल्ड पे है ना उससे। वाह भाई वाह, ये देख सुना- रहे हैं मुसलमानों। हाँ देख उसका भी लीजिए। भाई, वो अगर दुआ कुनूत दुआ मसूरा सुना दिया तो मैं नहीं सुनाया तो मैं अपने बाप को औलाद नहीं। ये कहो कि मुझे नाम से मालूम नहीं है, ऐसा बोल दो। हैं? बोलो कि मुझे नाम से मालूम नहीं है कि दुआ तशहुद किसको कहते हैं, दुआ मासूरा किसको कहते हैं, यही बोल दो। दुआ मसूरा, दुआ कुनूत, दुआ इस्तिग़फ़ार मुझे सब मालूम भाई। बस तो तुम उससे फिर कहो पढ़ो ना, तुम पढ़ो। उसकी बात सुन के मेरे से बात कर रहे हो ना। तो पढ़िए ना। तुम्हारे सामने क्यों पढ़ूंगा यार, जब उसकी अभी मैं साफ हूँ कि नहीं साफ हूँ, मैं दुआ मसूरा, दुआ कुनूत नापाक भी रहते हो। देखिए मुसलमानों, ये नापाकी नमाज पढ़ने चले आते हैं। बताइए, जुमे का टाइम हो गया और ये नापाकी बैठा हुआ है। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ मेरे भाई। लड़का भी है। किससे रे? तेरे से मुसलमानों फैसला आपको करना है। हेलो, ये देख लीजिए, ये है इन जमातियों की हकीकत। ये जमात वाले आया करे ना तो झाड़ू लेके भगाया करो सालों को, समझे? या फिर ऐसा किया करो, इनके बेहश्ती जेवर में लिखा है कि उंगली में निजात लग जाए तो 3 बार चाट लो। नाली में उंगली डाल के किस्मत जाग जाएगी। गटर के नाले में, सुनो जहाँ पे गटर का नाला बहता है ना, उसमें कन की उंगली थाम दो बाएं हाथ की और वो इनके मुंह में थमा दो के ले भाई चाट जरा। उंगली में निजात लग गई है, थानवी जी की सुन्नत को अदा कर। घर पाक कर देते ना पाको। मुसलमानों याद रखना मेरी बात को, ये जमात वाले चिल्ले के पिल्ले आया करें तो निजात में उंगली थान के और इनको चटवाया करो। नापाकी भरी है तुम लोग के अंग में, नापाकी भरी है। हेलो, लैट्रिन के पोतड़े अगर बच्चों के रखे हो तुम्हारे घर में तो लैट्रिन के पोतड़े सूंघाओ, क्योंकि ये इलियास कांदलवी की नानी के लैट्रिन के पोतड़े पहले सबसे सूंघते हैं। तुम लोग खाते हो इसलिए तो लैट्रिन कर रहे हो। लैट्रिन खाने में तुम लोग की आदत अबे सुन वो क्या कह रहे हैं, सुन। अरे एक बार और तोहमत लगा रहा है। हाँ क्या? हाँ बता। वो बोल रहा है हमारा बाथरूम में चीज निकाल के मारा है। वो थानवी मरा था। हाँ ये बात समझ में हाँ, उठा रिफाजात लियोमिया, मेरे को नहीं पता। साबित कर देगा तू हलाली है, अगर जिना की पैदावार नहीं है तो साबित कर। तो तू भी जिना और का पता नहीं तो हाँ, उठा लिफाजात लियोमिया, उठा लिफाजात लियोमिया के वो टट्टी पे मरा था, टट्टी पे मरा था, टट्टी पे लैट्रिन पे, जहाँ पुटर पुटर करता रहता था ना, उसका लास्ट वक्त में पेट खराब हो गया था। मेरे नबी की शान में जो तौहीन की थी ना, उसकी सजा उसको मिली बेशक बेशक। और मरा बदतरीन हालत में। किसको मिली तेरे को नहीं मालूम है, तेरे को ये बात नहीं मालूम किसको मिली है। ये तो दुनिया वाले फैसला करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेशक। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो थानवी को जिल्लत दी। सही बात है। हाँ, अभी सही की बात मेरे आला हजरत को इज्जत मिली और सारी कायनात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों से मोहब्बत करती है, सारी कायनात, सिर्फ शैतान को छोड़कर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारी देवबंदियों की किताब तक़वियतुल ईमान कह रही है कि अल्लाह वालों से शैतान के अलावा सारी मखलूक खुश रहती है। हाँ सही बात है।
تو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو معاذ اللہ نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر مانا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو تم جو میرے نبی کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر سمجھتے ہیں۔ زنا کا خیال آ جائے تو چلے گا، بہتر ہے۔ اے میرے بھائی ہاں سنو، تم لوگ کے دماغ میں یہ سب بات کون بھر دیا ہے کہ ہم لوگ تمہارے پاپا اسماعیل دہلوی نے مانتے ہیں؟ تمہارے پاپا اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا، جا کے کتاب اٹھا کے دیکھ لو، انجان ہو تم، ٹھیک ہے، کھولے میں ہو۔ ہماری بات سنیے، تم لوگ کو ٹریننگ ملتا ہے کیا اس چیز کا کہ ایسے ایسے تہمت لگاؤ، بڑے بڑے کرو؟ تہمت نہیں لگاتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے، تہمت لگانے والا گلا نپ جاتا ہے۔ اگر تہمت ہو، سنو، اگر یہ تہمت ہو، اچھا اگر یہ تہمت ہوئی تو آپ مجھے بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے قتل کر دینا، اور میں اسٹامپ پیپر پہ سائن کر دوں گا کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ بات سچی ہوئی، صحیح ہوئی، تو توبہ کرو گے؟ بتاؤ پوری دنیا کے سامنے، کیا چیز کا؟ خدا کی قسم کھا کے یہاں توبہ کرنے کا اعلان کرو، اور پھر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ فرشتوں کی لعنت ہو۔ پہلے بات تو بتاؤ میرے بھائی۔ اسی بات کے لیے جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا۔ ہاں، اگر یہ بات صحیح ہوئی، میری تہمت نہیں ہے، اگر میں نے آپ کی طرف تہمت نہیں لگائی ہے، میں نے سچ بولا ہے، تو سچے دل سے توبہ کرو کہ کھاؤ خدا کی قسم اور اعلان کرو۔ یہ ہمارے کتاب میں ہے؟ ہاں ہے جی۔ ہماری کتاب کون ہے؟ صراط مستقیم نہیں ہے میری کتاب۔ تیری کتاب تھوڑی کہہ رہا ہوں، تیرے مولویوں کی کتاب کہہ رہا ہوں، تیری جماعت کی کتاب نہیں کہہ ہے رہا میرے مولوی کی کتاب، نہیں ہے۔ ہوں۔ اگر یہ ہوئی پھر نہیں ہے میرے بھائی، تیرے کہنے سے تھوڑی نہیں ہے۔ تو تیرے کہنے سے ہو جائے گا کیا؟ ہاں، اسماعیل دہلوی تمہارا بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل؟ ارے چلے کے بلے، تم جانتے کچھ ہو نہیں، چلے گئے انجانے میں جماعت میں، سمجھے؟ تیرے جتنا پتا ہے اتنی بات بھیڑیا کا تو میں نے تبھی کہا تھا کہ آپ نے کسی بڑے باپ کو بلا کے لے کا۔ تیرے بڑے باپ خود میں ہوں بیٹا، تو ٹینشن کر لے رہا ہے۔ سالے مجوری کرنے آ جاتے ہو کمینے۔ چلو کال کٹ کرو اس کا۔ تیری اوقات ہی نہیں میرے ساتھ کر لے۔ واہ کیا بات ہے، کیا انداز ہے تیرا، واہ۔ تو نے تو ابو جہل کو بھی فیل کر دیا سالے شیطان۔ تو ابو جہل ہے اسی لیے تو بولو۔ شیطان بھی تم جیسے شیطانوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا۔ جب سے ہوئے وہابی دیوبندی پیدا تو شیطان نے خوش ہو کر کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ جب ہوا تھانوی پیدا تو شیطان نے خوش ہو کر کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ شیطان ہی پناہ مانگتا ہے، میں تو انسانوں۔ جب ہوا الیاس کاندیلوی نجس پیدا تو شیطان نے خوش ہو کر کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ وہ تیرے سے نمونے جب پیدا ہوئے گا تب بولا ہوگا آرام کے پلے، تو میرا ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دے۔ تیرے سے نمونے کمین کے بچے میں گردن نپوانے کے لیے تیار ہوں، سور میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، سالے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو شیطان۔ نا جا کے نا جا کے ہمیں لگا رہی ہے، ایک منٹ رکھیے۔ ارے توبہ نہیں کر سکتا تو؟ ہاں بولنا، توبہ کروں گا نا، غلط تو پھر اگر سن اب خالی سچے دل سے سرچ کر لے تو یہ تمہاری، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے یا نہیں؟ بس دیکھو میں تمہیں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ اب دیکھو میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہو، غصے میں تم بولو گے، غصے میں میں بھی بول سکتا ہوں، تم مجھے برا بھلا کہو گے، میں تمہیں برا بھلا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر یہ باتیں، ہاں یہ باتیں دیوبندیوں کی کتابوں میں ہیں۔ اگر ایک بھی حوالہ میرا یار یہ کہتے ہو نا کہ نہیں ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو تم مجھے قتل کر دو، چلو میں تمہارے ہاتھ سے قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر اگر یہ ہوا تمہاری کتابوں میں تو سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو تم؟ یہ بتاؤ پہلے۔ کس کا مال کی رہے؟ ہاں بھائی، ہاں ایک منٹ رکو۔ تم سچے دل سے توبہ کے لیے تیار کیوں نہیں ہو یہ بتاؤ؟ اپنے کسی مفتی کو لائن پہ لو، اپنے کسی مفتی کو لائن پہ لو۔ نہیں بھائی ہمارا اتنی پہنچ نہیں کہ مفتی کی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا تو میرے دوست، تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے کہ دیوبندیوں سے محبت ہے؟ یہ بولو پہلے آپ۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی محبت ہے؟ کرتے جان سے بھی زیادہ۔ جان سے بھی زیادہ؟ اچھا تو جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، تو اس کا باپ اگر اس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کرے گا تو تھپڑ نہیں مار سکتا؟ گویا کہ اس کا باپ کلمہ پڑھنے والا ہے تو نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کی شان میں توہین نہیں کرے گا نا، جو حقیقی کلمہ پڑھتا ہے۔ ہاں کلمہ دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میرے نبی کی شان میں وہی توہین کرے گا جو حرامی ہے۔ ہاں میرے نبی نے جس کی اصل میں خطا ہے۔ ہاں تو تھانوی کی اصل میں خطا تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہی نہیں تھا،
उसके ओरिजिनल बाप का आज तक किसी को नाम नहीं मालूम कि वो ओरिजिनल है किसका। भाई एक बात बताइए, हाँ आप इतना नबी की बात करें कि नबी का मैं मानने वाला हूँ, अच्छा मेरे नबी कहीं से ऐसी हदीस है कि किसी का ऐब को जाहिर करना है? अच्छा, जो मेरे नबी के ऐब को जाहिर करे मैं उसके ऐब को जाहिर ना करूं? अगर बता दो अहमद। सुन सुन सुनो, जैसे तुम बोल रहे एक हो। मिनट हाँ ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा किया तो हर ऐब से पाक पैदा किया या उनके अंदर कोई ऐब है? ये बोलो। कोई ऐब नहीं है, हर ऐसे पाक कोई ऐब नहीं है ना? नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐब नहीं है, नहीं है, मेरे आका में जब कोई ऐब नहीं है, तो फिर जो मेरे नबी में ऐब निकाले, ऐब मेरे नबी में तलाशे, तो वो मुसलमान है या काफिर है? काफिर है। काफिर है ना? काफिर है। अच्छा चलिए मुसलमान है ही नहीं सकता तो काफिर कहाँ से? माशाल्लाह। बताइए। आपका इल्म ऐसा ही है जैसे छोटे बच्चे का? जी, आपका इल्म ऐसा ही है जैसे छोटे बच्चे का? नहीं। अच्छा, आपका इल्म ज्यादा होगा ना? जैसे लोग रहते हैं वैसे मैं बात करता हूँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, थानवी जी जो है, थानवी जी का जो इल्म है क्या ऐसा है जैसे आपका इल्म? नहीं ना? हमारा जिंदगी में नहीं बन सकता। अच्छा, जिंदगी में तो आपको यकीन है जिंदगी में आप नहीं बन सकते थानवी की तरह? नहीं। चलिए, अच्छा, मेरे नबी की तरह कोई है? मेरे नबी के इल्म गैब की तरह या मेरे नबी के इल्म की तरह किसी और का इल्म गैब या इल्म है? अरे तो बच्चा भी जानता है, कोई किसी का नहीं है। किसी का नहीं है? अच्छा, जो मेरे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब की तरह तुम्हारे और मेरे इल्म गैब की तरह अगर बताए तो मुसलमान है या काफिर? अरे यार तुम ही जानते हो कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो मेरे नबी पे कोई भी नुक्सा लगाए, कोई ऐप बताए, कोई भी बुराई करे, मेरे नबी को मुसलमान नहीं हो सकता कहीं। माशाल्लाह, यानी काफिर है। कर रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने कबूल नहीं किया। अच्छा, यानी काफिर है आपके नजदीक? हाँ, मेरे नजदीक नहीं, मैं आलिम नहीं भाई, मेरे नजदीक कोई कुछ नहीं हो सकता। शरीयत इस्लाम के नजदीक तो है ना? हाँ, इस्लाम के नजदीक, मेरे नजदीक कुछ नहीं हो सकता। तो आपने मान लिया ना कि जो नबी की शान में तौहीन करेगा या जो ये कहेगा जैसा इल्म हुजूर का है ऐसा इल्म गैब जो है माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी है, तो वो इंसान काफिर है ना? हाँ, अगर मेरे बाप भी ये बात कह रहे हैं ना तो वो भी काफिर है। अल्लाह अकबर। मगर एक बात बताऊं, अपने बाप को तो तुम काफिर कह सकते हो मगर अपने किसी बुजुर्ग को काफिर नहीं कह सकते। हाँ नहीं, अरे मेरा बुजुर्ग क्या, मेरा अपने भाव को बोले ना, कोई भी आएगा उसको। आप सुनिए मौलाना अशरफ थानवी की किताब है हिफ्जुल ईमान, सफा नंबर है 15, जो मेरे पास किताब है। उसमें लिखा कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तरफ ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ इल्म गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। तो ये थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुजूर को जो इल्म गैब हासिल है ना, बाज़ इल्म गैब, तो इसमें हुजूर की कोई तख्सीस नहीं मानी थानवी ने। ठीक है, इसमें हुजूर का कोई कमाल नहीं। ऐसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल बताया है। मेरे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी है, यानी मिलाया है। जैसा इल्म गैब जानवरों का है मेरा, वैसे ही इल्म माज़अल्लाह मेरे नबी को है। तो जो मेरे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब की तरह बताए, तुम्हारे और मेरे इल्म गैब की तरह बताए, क्या वो आपके नजदीक मुसलमान है या शरीयत इस्लाम के नजदीक मुसलमान है? कोई भी है यार, तो मेरे नबी पे नुक्सा उठा रहा तो गलत है। माशाल्लाह, तभी तो मैं कहता हूँ भाईजान, आप लोग अनजान हो, धोखे में हो, ठीक है। ये कम इल्म लोगों को पकड़ के अपनी जमात पढ़ाते हैं। ये बात मत, ये अनजान है हम। अनजान नहीं है, मतलब हकीकत में अनजान हो यार, हकीकत में अनजान। नहीं भाई, आप इन लोगों के नापाक अकीदे से वाकिफ नहीं हो तो अनजान। नहीं। अरे मानो ना मेरी इस बात को आप, मैं 15 साल से ज्यादा इन्हीं जमातियों में रह चुका हूँ, इन्हीं देवबंदियों में रह चुका हूँ। इन देवबंदियों का मैंने मदरसे में पढ़ाई की है 10-11 साल, और फिर पढ़ाई छूटने के बावजूद भी 4-5 साल में इन्हीं लोगों में रहा हूँ। जी भाईजान, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो, मैं इनके रग रग से वाकिफ हूँ। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा आपकी नजर में कोई मुफ्ती हो इनका, सुनो ना। हाँ, इनका आपके नजर में कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, मेरी बात करा दीजिएगा, इंशाल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने कर दूंगा। या तो वो भाग जाएगा कॉल काट के, ठीक है, या कहेगा अरे नहीं बहसों मुबाहिसा मत करो बस, या वो कह देगा यार मुझे टाइम नहीं है या मेरी तबीयत खराब है, कोई ना कोई बहाना लेकर फरार हो जाएगा। या फिर बड़बड़ बस बड़बड़ करने लगेगा, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। सुनिए मेरी बतिया, ठीक सही कह रहे हो,
खबर कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा तो वही लगाया है ना उसमें। मेरा भाई लगाया है। तुम बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आपकी नजर में अगर आपका कोई बड़े से बड़ा आलिम हो तो आप मेरी बात करा सकते हैं। जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इनकी किताबों से और इनके गलत बातें, उनमें से मेरा एक भी हवाला कोई साबित कर दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। हाँ, ये बात तो सही है। कहाँ जी। सभी लोग? चलो अच्छा, ठीक है। समझे भाईजान, आप धोखे में हो, अनजाने में हो मेरे दोस्त। आप एक चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है नूर हसन रजवी नेटवर्क। उसमें इनके बड़े बड़े मुफ्तियों से मेरी गुफ्तगू होती है, ठीक है, आप उसको सुने। मैं देखिए जिस चीज को ये इनकार करते हैं मैं इनके मुंह से उगलवाता हूँ, उस चीज को कबूलवाता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे? बताओ। मस्जिदुल हराम में जो इमाम नमाज पढ़ाता है, हाँ, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं जायज? पहले उसका ईमान देखना होगा कि वो मेरे नबी का वफादार है कि गद्दार है। अगर वफादार है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है, और गद्दार है जो तू आपसे सुनिए एक बात, ये सब बकवास करना बंद करो, ठीक है? तुम मुझे अनजान मत समझो। आप तो इतना मेरे से बकवास की, मैं आपको कुछ बोला? अब आप मेरे सुनिए, मैंने 100 की एक बात कह दी कि उसका ईमान देखना पड़ेगा। आपका सुना कि नहीं? मैंने कहा ना, सुना कि नहीं? 1000 की एक बात कह दी कि उसका ईमान देखना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है। हाँ, उसका ईमान देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अगर मेरे नबी का गुस्ताख है, आपके नबी का गुस्ताख है, तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? हुजूर के गुस्ताख के पीछे एक जो सवाल तुम्हारे फिर वही बात, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने 100 की एक बात कह दी। अच्छा एक मिनट, काफिर के पीछे नमाज है, काफिर के ऊपर नमाज फर्ज है कि मोमिन के ऊपर नमाज फर्ज है? मैं मेरे सवाल का जवाब दिए नहीं तुम पहले। वही जवाब दे रहा हूँ। मुझे क्या पता कौन वहाँ है, मुझे क्या पता कौन है क्या है, मेरे नबी का गद्दार है कि वफादार है? कैसे मालूम है? अच्छा एक मिनट, 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की हुकूमत आने वाली है। 2023 में क्या करोगे आप लोग? 2023 में? हाँ, 2023 नहीं, जो क्या बोलते हैं, पल्ला पलट दोगे? मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे जब तक ना, तब तक हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या? और आपके ऐसे लोग कहते रहेंगे, अफवाह उड़ाते अच्छा, यानी जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे जब तक तुम ये काम करते रहोगे, शैतानी फितरत वाला है ना? जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मार मार के कलमा पढ़वाएंगे, उस वक्त मानोगे? उनके जमाने तक भी करेंगे, वो भी हमारा ये कलमा पढ़ेंगे। तेरा कलमा पढ़ेंगे वो? मेरा नहीं, जो मैं, तूने कहा ना कि हमारा कलमा पढ़ेंगे। जो कलमा मैं पढ़ा हूँ अल्लाह के नबी की इत्तिबा में, वो भी रहेंगी। अबे देख रहे हैं कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है ये जो बात कर रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है। और मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी मुसलमानों को, वो मानने वाला नहीं होगा, मानेगा नहीं किसी भी हालत में। अगर इसकी किस्मत ही अच्छी है, अगर इसने सर्च कर लिया, तहकीक कर ली, अगर इसको अपने नबी से मोहब्बत है, अपने नबी से जो है दिल से ये हुजूर से मोहब्बत करता है, तो इन शैतानों की किताबें देख के ये तौबा कर लेगा, वरना ये कभी भी तौबा नहीं करेगा। कौन शैतानों की? थानवी शैतान की, ननौतवी शैतान की, गंगोही शैतान की। अगर वो शैतान है तो तू सबसे बड़ा शैतान है। उनको शैतान, मैं मोमिन हूँ, मैं गुलामाने रसूल हूँ, नहीं हो, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का वफादार हूँ। शेर का पेश कर सकता हूँ, तू मोमिन नहीं है। अच्छा तो चलिए बता, क्या कोई नबी पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो ये कहे माज़अल्लाह कि अब भी कोई नबी पैदा हो और हुजूर के खात्मे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुसलमान है या काफिर? अबे वही मसले मसाइल की बोल ना, हाँ ना में जवाब दे, कहते कहते रुक गया तू। नहीं हो सकता, काफिर है वो, काफिर है माशाअल्लाह। अच्छा, जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये आवाम का ख्याल है? आवाम का पूरे 6.5 बर्रे आज़म का ख्याल है कि आवाम का ख्याल है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलिम और आवाम सबका ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? नहीं, सबका ख्याल नहीं, मखलूक हर फरिश्ते सबका यही है मानना। अरे मैं आखिरी नबी है, मैं वही तो कह रहा हूँ। मगर तुम्हारा मौलवी कासिम ननौतवी तहजीरुन नास किताब में कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये आवाम का ख्याल है। अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुरी ज़माने में विल्दान कुछ फजीलत नहीं। तुमने थानवी को भी काफिर साबित कर दिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे चूतिया, तो कैसे बात कर रहा है? गाली मत बक, बोल रहा हूँ, गाली मत बक, बदतमीजी कर, बदतमीजी मत कर। माँ बहन कर रहा है, मैं तेरे को बदतमीजी से नहीं बात कर रहा हूँ। अरे यार मैं हकीकत दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। अबे तो तू काफिर बोलने वाला होता कौन है? देख रहे हैं मुसलमान, इसकी मिर्ची लग गई। मेरे नबी को जो तौहीन कर, मेरे नबी की शान में जो तौहीन करते हैं, उन्हें सालों को ये अपना बाप बनाया हुआ है।
उसको तू काफिर बोल देगा? हाँ काफिर है वो, तूने ही कहा है ना काफिर है, इसका मैंने थोड़ी कहा, तूने कहा है ना काफिर है। काफिर बोलने का? हैं? अबे बेवकूफ, मैंने थोड़ी कहा है काफिर, तूने कहा है कि काफिर है। पागल इंसान, अपना इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है रे। अच्छा कमीने, भूल गया क्या इतनी जल्दी कह के? तूने कहा था ना काफिर है, थानवी को भी तूने काफिर कहा, मैंने कहा कहा? यही तो मेरे अंदर खासियत है कि मैं तुम लोगों से कहलवाता हूँ। अच्छा जी है मत कर, तेरे बड़े बड़े मुफ्तियों का पसीना निकाल देता हूँ मैं, तू अभी मुझे जानता नहीं ठीक तरीके से। मेरा पसीना पहले निकाल दे, मुफ्ती के बाद नहीं जानता। अबे साले पागल बेवकूफ इंसान, मुझोर दो कौड़ी के इंसान, तू शैतानों से मोहब्बत करता है, नबी के दुश्मनों से मोहब्बत करता है, नबी से दुश्मनी करता है। शैतान की मोहब्बत कमीने, शैतान की नस्ल है तू। मेरी जबान तेरे जैसे लोगों के लिए इसी तरह चलती है, मैं जितना मीठा हूँ उससे ज्यादा कड़वा भी हूँ। अबे तेरे ज्यादा कड़वा मैं हूँ। बदबक, मैं हुजूर के दुश्मनों से इसी तरह बात करता हूँ। अबे वली को दुश्मन सबसे बड़ा तू ही जो है। नबी का वफादार होगा उसको अच्छी लगती है, जो नबी का गद्दार होगा उसको मेरी जबान बुरी लगती है। सबसे बड़ा कमीना तो ही है। हाँ तेरे जैसे शैतान मुझे, हाँ तो ही है, तेरे जैसे शैतान मुझे बुराई बताते हैं। अबू जहल भी तेरे तो दीन को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जैसा तू पहुंचा रहा है। अबे हराम के पिल्ले, तू तो अपने बाप अबू जहल से भी आगे निकल गया। तेरे बाप अबू जहल का अकीदा था कि हुजूर को इल्म गैब हासिल है, तेरे शैतान जो अल्लाह का नबी होता है वो गैब का इल्म जानता है। शैतान को ज्यादा इल्म था, शैतान तू है साले। कमीने, तेरे बाप ने लिखा है अल बराहिनुल कातिया में कि माज़ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म मलकुल मौत को है। तेरे बाप कितने हैं? तेरे पता नहीं कितने बाप है, मुझे क्यों बता रहा तेरे कितने बाप है? मेरा तो एक ही बाप है। तेरे मेरा बाप हुआ, तेरा ही बाप ऐसा हुआ। अबे नज्द की नाजायज औलाद, तू अपना डीएनए टेस्ट करा, अपना डीएनए टेस्ट करा। तुझे मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, तुझे हरामियों से मोहब्बत है। हरामी तू है तो इसलिए तेरे हरामी। थानवी के आज तक ओरिजिनल बाप का पता ही नहीं चला। किसी बड़े से बड़े मुफ्ती से भी मैंने पूछा तो वो राह फरार हो गया, कन्नी काट के भाग गया। अरे बड़े बड़े मुफ्ती से भेंट किसके किया होगा? अपने ही चिल्लन चट्टू से भेंट किया होगा ना। नहीं, तेरी नजर में कोई बड़े से बड़ा तेरा मुफ्ती हो तो लेके आ। अरे तेरे से फालतू लोग से नहीं ना बात करने के लिए इतना खाली है। दुनिया में कोई देवबंदी आज तक पैदा भी नहीं हुआ, किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो हमारे किसी के अकीदे पर मुझसे बात कर ले। बच्चा है तू तो लाना किसी अपने बड़े आलिम को, लेकर आना। हाँ लेकर किसी बड़े आलिम को। तेरा इतना गुरूर है ना? अरे गुरूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गुरूर नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं उस सड़ी हुई बदबूदार जमात से निकला हूँ, जहन्नमी जमात से निकला हूँ। अबे तू निकल गया ना, तेरी सबसे बड़ी तेरी नाकिस्मती है। तेरा अल्लाह ने तुझे अच्छा, मैं अबू जहल की जमात में नहीं रह सकता ना? इस काम में रहने लायक नहीं है। अबू जहल की नस्ल का तू, अबू जहल का भी नस्ल का अल्लाह ने कबूल किया। अच्छा सुन, जो नबी की शान में तौहीन करेगा वो अबू जहल के जैसा होगा, या जो नबी की तारीफ करेगा वो अबू जहल के जैसा होगा? जवाब दे, घुमा फिरा के जवाब देना हराम के पिल्ले, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ ना। जो नबी की तारीफ करेगा वो अबू जहल होगा, या जो नबी की तौहीन करेगा वो अबू जहल होगा? बोलना शान का मतलब क्या होता है? साले बोल मेरे बतिया तू। अब मेरे नबी की शान जो बयान करता है, यानी मेरे नबी की तारीफ जो करता है, इसका मतलब बता चल। काय का? नबी का शान का मतलब क्या होता है? नबी की शान यानी नबी की तारीफ, नबी की शान और नबी की बड़ाई, नबी का काम आए, नबी का नाम आए, नबी की तारीफ मिलाएगा तू। यही नबी का काम ये नहीं था कि दीन फैलाना। अल्हम्दुलिल्लाह वही तो कर रहा हूँ, तुम्हारा कुफ्र तो उजागर कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम्हारे शैतान बे साले काफिरों को तो शैतान मानता है। ते चार काफिर जो है पक्के काफिर हैं, जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तू मुफ्ती है कि नहीं? तू, अरे मैं मुफ्ती हूँ या नहीं हूँ, तू लाना ना अपने बड़े। नहीं लगता मैं तालिबे इल्म हूँ। तू मुझे लग रहा है। अबे शैतान के पुत्र, मैं तालिबे इल्म हूँ। तालिबे इल्म नहीं लगता हमको। चल तुझे जो भी लगता है, खैर जा अपने किसी बड़े मुफ्ती को लेकर, ठीक है? अबे तेरे से भांडो लोग से मुफ्ती मेरी बात करेंगे, पागल है क्या? अबे पागल के बच्चे, सारी चीजें तूने अपने मुंह से उगल दी। तूने थानवी को काफिर कह दिया, ननौतवी को काफिर कह दिया। तेरे को बोला। अच्छा ये बता, अच्छा एक बात और बता, अच्छा एक बात और बता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है या नहीं? हाँ है। अरे 100 आए उनके नाम है, 100 नाम उनके रहमत के अल्लाह बयान कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह। क्या हुजूर के अलावा कोई और भी रहमतुल्लिल आलमीन है कायनात में? अरे बच्चे वाली बात कर रहा है यार। बता दो ना, नहीं बता मेरे को, बताओ ना। है हुजूर के अलावा भी कोई और रहमतुल्लिल आलमीन है? क्यों कर रहा है तू मेरे से? मैं पूछ रहा हूँ ना, सवाल मेरे से क्यों कर रहा है? बस जवाब दे दीजिए हाँ नाम है भाईजान। अबे तो ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको ही मालूम है भाई, बगल में खड़ा है। क्या मालूम है? जरा उनसे कहलवाना, जरा कहलवाना। हाँ बात कराओ। रहमतुल्लिल आलिम, अल्लाह के सिवा अल्लाह का नबी बने, उनके सिवा रहमतुल्लिल आलिम कोई नहीं है, समझा? कोई नहीं? नहीं। पक्का अकीदा है तुम्हारा? हाँ है। सही में? हाँ। कोई शक?
क्या वो कहानी बुझा रहा है क्या? पूछ रहा हूँ यार, कभी डाउट हो, कभी धोखे में करे हो नशे उशे में? नहीं, कोई नशे डाउट में नहीं है ना? रहता। अल्लाह बिल्कुल का शुक्र पक्का है ना कि हुजूर के अलावा कोई रहमतुल्लिल आलमीन नहीं? नहीं, किसी अच्छा, दाऊद तो जो के काम को पकड़ के कर रहा है सुनो तो यार, वो रहमत बन सकता है, मगर हाँ, रहमतुल्लिल अरे आलमीन माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। हाँ, देखिए रहमत तो हो सकता है, रहमतुल्लिल आलमीन नहीं। हाँ ठीक है, आप अपने बाप के लिए रहमत हो, आपकी औलाद आपके लिए रहमत है, आप अपने बाप के लिए रहमत हो, आपका बाप आपके लिए रहमत है, मगर रहमतुल्लिल आलमीन नहीं, यानी आलम के लिए रहमत नहीं। नहीं। ठीक है, हाँ। अब अगर किसी का अकीदा ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन का ये लफ्ज है, ये जो खास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, सिर्फ हुजूर के लिए ही खास नहीं, ठीक है, ये सिर्फ खास, ये खासा सिर्फ हुजूर के लिए नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है, जिसका ये अकीदा हो सकता है, हो सकता है। सुनना। अच्छा, कोई और बन सकता है? हाँ हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, मेरे नबी अभी तो तुमने एक बात सुन मेरी पहले पूरा। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उनके बाद वो क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, तो भी रहमतुल्लिल आलमीन थे, क्योंकि पूरे माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। देख रहे हैं मुसलमानों, देखिए इसके अभी ये कह रहा था कि कोई शक नहीं है। अब जब मैंने इसके घर का हवाला सुनाया है तो ये माज़अल्लाह कह रहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रहमतुल्लिल आलमीन है। तो हुजूर के लिए अगर कोई हदीस हो या कुरान में कोई आयत हो तो चल पेश कर। अब कहाँ से तूने बोला है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रहमतुल्लिल आलमीन है? हवाला पेश कर। हदीस बयान कर रहे थे क्या? हदीस पेश कर या कुरान की कोई आयत पेश कर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन है। चल जल्दी पेश कर। सारे आलम के लिए रहमत बने थे। कौन? रहमतुल्लिल आलमीन हो जाना। और तो सबूत पेश करना, सबूत पेश कर। ऐसे तो फिर चारों साहबा हो गए, हाँ, जो खुलफाए राशिदीन है। हाँ, चारों साहबा। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। देख रहे हैं मुसलमानों, फैसला आपको ही करना है। हाँ देख रहा हूँ। बताइए, मैंने इनके घर का हवाला सुनाया तो इसको एकदम से दिमाग आ गया। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नहीं कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरा पुख्ता यकीन है? मैंने कहा हो सकता है शराब पी के बोल रहा हूँ, नशे में बोल रहा हूँ। बोला नहीं कोई शक नहीं है। तेरा इशारा में समझ। इतनी जल्दी पलट गया। गिरगट कितना कलर बदलते हैं भाईजान, समझ रहा बाबू। गिरगट कितना कलर बदलते हैं ये लोग। गिरगिट की तरह तू पलट रहा है बाबू। मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं रहा, तू अपने ही खाली भाषण मार रहा है। ये फैसला तुझे नहीं करना, ये आवाम जो सुन रहे हैं ना, जो आवाम सुनेंगे वो उनको करना है। ये जो आवाम का नाम तो कब से ले रहा है ना, हाँ, तो ये तू अपना परिचय करा रहा है। देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं इसको पीछे कर दे रहा हूँ। अबे तू तो ये तुम्हारी शैतानी जमात से मैं आगाह कराने के लिए सारे। अगर तेरे बात का मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया अभी ना, तो मैं समझ ले तेरे से कमजोर। तू आलिम है, मैं आम आदमी हूँ। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तू अपने किसी बड़े चिल्ले के पिल्ले को लेके आ। मैं तेरे जैसे से बात ही कहाँ करना चाहता हूँ। मगर तूने कहा मैं ही बात करूंगा। तेरे को मैं तू आलिम, तेरे गाली देने की दिल नहीं करता मैं। अबे मैं आलिम नहीं हूँ। कुत्ते का पिल्ले। हाँ क्या है तू? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ तेरी तरह। तू कब से मुफ्ती क्या भिड़ा रहा है तू? मैंने कब कहा मैं मुफ्ती हूँ? कब से तो बोल रहा है मुफ्ती हूँ मैं, मुफ्ती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। कहो आमीन, सब मिलके कहो मुसलमानों आमीन। आमीन 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 आमीन। मैंने कब कहा? मेरी रिकॉर्डिंग में एक जगह बता दे कि मैं मुफ्ती हूँ। तो कब से मुफ्ती के मतलब तू मुफ्ती नाम क्यों ले रहा था? मैं तेरे मुफ्तियों का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब मेरे मुफ्ती का नाम ले रहा था? बोला जनाजा निकालता हूँ, तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है, ठीक है? जाके दिल्ली मरकज में जाके मेरा नाम ले दे। खलबली मची हुई है मेरे नाम की। मदरसा दारुल देवान पहुंचा, मेरा नाम ले दे खाली तो मेरे नाम का जलजला है, मेरे नाम का। अल्हम्दुलिल्लाह, जाके देखना, नाम ले। तेरे नाम कर दारुल देवान में कॉल और बोल के कोई नूर हसन नाम का कोई बंदा है क्या? नूर हसन का नाम तो मैं भी सुना हूँ बहुत पहले से, मगर मेरे गांव। तूने भी सुना है? हाँ। क्या नाम सुना है तूने? पूरा जरा नाम बताना। नूर हसन बरकाती रज़वी सुना है या कोई और नूर हसन को सुना है? अरे पूरा नाम मेरे को जानने का शौक भी पैदा नहीं हुआ, मैं खाली नूर हसन सुना हूँ। अच्छा, क्या सुना है? कहता है। तूने भी सुन लिया? चल बता। देखो भाई, इसने गवाही दे दी कि मैं भी सुना हूँ। सुना नहीं हूँ मैं, सुना कोई बेवकूफ है जो आवाम को बहकाता है। खैर वो तो आवाम को फैसला करना है कि मैं बहकाता हूँ कि क्या करता हूँ। तेरे कहने से थोड़ी अभी आवाम इतनी चालाक नहीं है दोस्त। चालाक नहीं है? अच्छा, इसीलिए तुम चिल्ले के पिल्ले जमाते ले जाके उनको बहकाते हो। आवाम बेवकूफ है तो। अरे बेटा, जो बहके हुए तो उनको देख लो मुसलमानों, ये आपके सामने खुद ही कह रहे हैं।
اب دیوبندی عوام کی تھانوی کے نزدیک کیسی عقل ہے؟ جیسے عضو تناسل گدھے کا، سمجھے؟ ہاں اس نے اپنی کتاب میں لکھا نا پورا صاف صاف. مگر یہ ساری باتیں میں اس پہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، مگر اس نے جو یہ بات کہی نا کہ ابھی عوام اتنی چالاک نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو میں نے دیوبندی عوام کی مثال انہی کے اوپر ٹھوک دی. تھانوی کا عقیدہ ہے معاذ اللہ. ہاں ہلو بول رہے اب میرے کو ہی بولا تھا میری کتاب میں اگر غلط ثابت ہوگا تو میں کتاب کو جلا دوں گا. ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں، ابھی بول رہا ہوں. تو جلاؤ نا یار ان کتابوں کو. ہاں تو میرے سامنے لا نا، میرے سامنے لا. اگر غلط ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ان کتابوں کو جلانا اور کہنا کہ میں نے پہلے تو میرے نزدیک یوٹیوب فوٹو میں چلا کبھی دین کی بات یوٹیوب. اچھا ایک ویڈیو بنانا اور بولنا کہ ان کتابوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہینیں کی ہوئی تھی، اور توہینیں کوئی ثبوت پوچھے تم سے تو ثبوت بھی تمہیں ہی دینا ہے کیونکہ کتابیں تم جلاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ ثبوت تلاش کر کے رکھنا.